ہمارے تنظیم کے اہم شخصیت جناب اسلم صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائے. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں حیدر علی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ سار کو شال پوشی کرے. تھوڑا بہت بولوں گا بس. ابابیل فاؤنڈیشن کے بارے میں بولنا ہے. لاسٹ ایئر ایک بار ابابیل فاؤنڈیشن میں جب پروگرام چلا تھا, یہی ایسے ہی مطلب کپڑوں کا ڈسٹریبیوشن کر رہے ہیں بول کے افراد جو پورے یونٹ ممبر تھے سب بلا لے کے گئے تھے. تو جب میں وہ پروگرام دیکھنے کے بعد ایک چیز سمجھ میں آئی کہ گیسٹ کے جیسا نہیں, میں بھی ایک والنٹیئر اور ممبر کے جیسا یہاں پہ آیا ہوں. لاسٹ ٹائم دیکھا تھا ایک آرفنس پورے بچوں کے لیے, کڈس کے لیے پورے کپڑے ایسے ڈسٹریبیوٹ کر رہے پلان ہے بول کے بولے تھے. کبھی بھی کہیں بھی جاؤ رمضان یا پھر کوئی بھی اوکیشن ہو تو بڑوں کو سب جگہ ڈسٹریبیوٹ کرتے, لیکن بچوں کو کیسا, بچوں کو کوئی بھی دیکھتا نہیں. کیا مطلب ایک فیلنگ تھی دل میں. تو افراز کی ٹیم پورا ابابیل والے پورے مل کے ایک پلان کیے. تو ایک جگہ حیدرآباد میں دیکھا تھا, اس کے بعد یہاں پہ ادونی میں پھر افراز اسٹارٹ کیے تو بہت اچھا لگا. پورے بچوں کے لیے پروگرام مطلب پورے محلے وہ بنانا ایک سسٹمیٹک اسٹرکچر جیسا ہے. مطلب اب یہاں پہ خاصی پورے میں کتنے بچے ہیں, بچوں کے کوئی بچوں کا سائز کیسا ہے, چھوٹے بچے ہیں بڑے بچے ہیں, ان لوگوں کا پورا سائزز کیسا لینا کیا نہیں. تو اسے دن ایک رات میں بننے کا چیز تو نہیں ہے. اس کے لیے انہیں 1 مہینہ 2 مہینہ محنت کی ہے. گھر جانا مطلب میجرمنٹس لینا سب کس سے کیسا بچوں کے وہ محنت پوری کی ہے. وہ کرنے کے بعد بھی یہاں پہ پورا آج ایک پروگرام بنا ہے. تو اس کے بعد اور بلڈ ڈونیشن کیمپس بھی دیکھا میں ان کا. بلڈ ڈونیشن کیمپس میں تو میں خود پرسنلی کیسز افراز کو ریفر کیا تھا. افراز ہمارے کو نیگیٹو بلڈ گروپس جو سب سے ریئر بلڈ گروپس ہے وہ لوگ پورا ابابیل فاؤنڈیشن والے امیڈیٹلی ارینج کر کے سب کا جب لائف سیونگ سرجریز کے لیے ہیلپ کیا ہمارے لیے. تو ایز اے گیسٹ نہیں, ایز اے والنٹیئر ممبر کے جیسا میں آ کے شکر گزار ہوں اور تھینکفل ٹو افراز اینڈ ہز ٹیم فار ہیلپنگ ابابیل فاؤنڈیشن کے لیے. پورا تھینک یو فل جو بھی ہیلپ کی یہاں پہ آ کے ہمارے لیے سب کو جو بھی ایکٹیولی انوالو ہو بول کے بول دیے. بس تھینک یو, شکریہ, اللہ حافظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے میرے رب, میرے زبان کی گرہ کو کھول دیجئے, میرے سینے کو کھول دیجئے اور میری زبان کی گرہ کو کھول دیجئے تاکہ یہ لوگ میری بات آسانی سے سمجھ لیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی انبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اس کائنات کو بنایا, اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو دونوں جہانوں کا اور تمام جہانوں کا مالک اور رب ہے. اور اللہ کے مختصر حمد و ثنا کے بعد کروڑوں لاکھوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر, ان کی آل پر اور تمام صحابہ پر. اور اسی کے ساتھ ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج سب جانتے ہیں کہ ہم کس مقصد کے تحت آج ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں. آج ابابیل فاؤنڈیشن کی جانب سے گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی عید تحفہ یعنی عید کٹ کے ایک چھوٹا سا پروگرام یہاں پر حاجی پورہ مدینہ مسجد میں منعقد کیا گیا ہے. میں سب سے پہلے اللہ کا کروڑوں شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ہدایت اور توفیق دی کہ ہم پھر ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں پیش ہو کر آپ سب ماؤں بہنوں کی اور پیارے بچوں کی خدمت کرنے کے لائق اور سمجھ اور توفیق دی. اللہ تعالیٰ ہم بڑھ چڑھ کر اس طرح کے خدمتی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے اور عوام کی خدمت کریں گے. میں مبین سر کے بارے میں 2 الفاظ کہنا چاہتا ہوں. اکثر
अक्सर डॉक्टर्स सिर्फ अपने हॉस्पिटल या क्लिनिक तक महदूद रहते, बल्कि मुबीन सर अपनी क्लिनिक में, हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं और बाहर समाजी एक सोशल वर्कर हैं। बहुत से ऐसे सोशल एक्टिविटीज में अंजाम दे चुके हैं कि मुबीन सर खुद हमारे लिए एक इंस्पिरेशन बन चुके हैं। अल्लाह मुबीन सर को और ताकत और हिम्मत अफजाई दे कि आने वाले दिनों में और बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और खिदमत करें इंशाअल्लाह ताला। और मैं अब हमारा प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचा है और वो घड़ी नजदीक आ चुकी है जब से बेसब्री से हमारे प्यारों बच्चे इंतजार में बैठे हैं ईद के तोहफे के लिए। मैं मुख्तसर सा शुक्रिया अदा करता हूँ हमारी तमाम माँ बहनों का कि वो रोज़ा रहते हुए बावजूद इस कड़कती धूप में, गर्मी में, बहरहाल छपरा है, इस कड़कती गर्मी में यहाँ पर कई देर से बैठकर हमारा इंतजार कर रहे हैं। उन बच्चों का शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। और हमारे वास्ते दुआ करो, हमारे तंजीम के वास्ते दुआ करो और तमाम उन सब लोगों का, उन वॉलंटियर्स का, हमारे इस मोहल्ले के साथियों का और हमारे यहाँ पे जिम्मेदारों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस रमजान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, रोजे रहकर यहाँ पर मोहल्ले में सर्वे करे, घरे घर फिरे, मालूम कर लिए कि यहाँ पर कौन मजलूम है, कौन यतीम है, कौन बेसहारा है। उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनके बगैर ये चमकता हुआ प्रोग्राम इम्पॉसिबल हो सकता था। और इसी के साथ साथ मैं दुआ करता हूँ और इरादा करता हूँ कि आज के बाद अबाबिल फाउंडेशन हाजिरी में रहने के बावजूद अब से कोई मजलूम भूखा नहीं सोएगा इंशाअल्लाह ताला, अब से कोई मजलूम बेसहारा नहीं रहेगा, अब से कोई मजलूम या कोई बच्चा अपने स्कूल को नहीं छोड़ेगा कमाई की वजह से, गरीबत और गुर्बत की वजह से इंशाअल्लाह ताला। सिर्फ हम ईद के कपड़ों या ईद के किट्स तक महदूद नहीं रहेंगे, आने वाले दिनों में बच्चों को माशरी, एजुकेशन, हेल्थ और दीगर सलाहियतों से अबाबिल फाउंडेशन के जरिए आपकी खिदमत में हाजिर रहेंगे इंशाअल्लाह। आप सबसे दुआ की गुजारिश, अब मैं हमारे टीम मेंबर्स को दावत देता हूँ, हमें तौफीक दी कि ईद जैसे मुबारक मौके पर हम खुशियाँ हमारे प्यारों बच्चों के साथ बांट रहे हैं। हमें इस्लाम ऐसी तालीमात देता है, जगह जगह पर हमें ऐसी रिवायतें और हदीसें मिलती हैं जहां पर मजलूम यतीम बच्चों का सहारा और उनकी हौसला अफजाई और इनको हिम्मत देने की बात की जाती है। हुज़ूर अकरम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया कि जो शख्स यतीम और मजलूम बच्चों की कफालत लेता है उनको हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह दोनों उंगलियों के निशान बताकर फरमाया कि वो शख्स और हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में इस तरह रहेंगे। इस तरह दोनों उंगलियों को मिलाकर दिखाया। मतलब हम सब खुश नसीब हैं कि इंशाअल्लाह हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हदीस पर कुछ ना कुछ अमल करते हुए नजर आते हैं। अल्लाह ताला हमारे इस नेक और जायज़ काम को कबूल फरमाए। और हमारा इस तंजीम का मकसद सिर्फ ईद के तोहफे देना नहीं, बल्कि ऐसे बहुत से कारनामे अबाबिल फाउंडेशन आजुनी में गुज़िश्ता सालों में दी चुकी है। आप सब हजरात बेहतरी से जानते हैं। मिसाल के तौर पर हेल्थ का मामला आया तो अबाबिल फाउंडेशन ब्लड डोनेशन के कैंप्स लगाकर ना कि सिर्फ ब्लड डोनेशन कैंप, इसको तो मेगा ब्लड डोनेशन कैंप बोलना, क्योंकि आजुनी में एक ब्लड डोनेशन की लहर चल चुकी थी जहाँ पर मुख्तलिफ जगहों में मुख्तलिफ लोगों ने बगैर मजहब, बगैर कोई फिरका परस्ती के बहुत से लोगों ने आकर अपना खून डोनेट कर चुके थे। और इसी के साथ साथ हमारी इज्तिमाई शादियाँ, आप सब हजरात बहुत अच्छी से, बहुत खूब से जानते हैं कि हम KKB फंक्शन हॉल में इज्तिमाई शादियाँ कर चुके हैं जहाँ पर हम ज़रूरतमंद मुस्तहिक लोगों को लड़कियों के निकाह कर चुके हैं। और इसी के साथ साथ हमारे ऐसे बहुत से खिदमात हैं जहाँ पर हमारा उम्मीद और हमेशा दिल में मंशा है कि हम किस तरह गरीब, यतीम और बेसहारा लोगों का सहारा बन सके। और इसी के साथ साथ हमारा आज का प्रोग्राम, आज का ईद का आज से प्रोग्राम शुरू होता है। आज पहला प्रोग्राम है जहां हम मदीना मस्जिद खाजीपुरा में कर रहे हैं।
इसी के साथ साथ लगातार 4 या 5 दिन तक 6-7 प्रोग्राम चलेंगे, जहां पर हम पूरे शहर आधुनी में यतीम, मजलूम, बेसहारा बच्चों को जगह जगह पर ईद के तोहफे दे रहे हैं। ये सिर्फ ईद के तोहफे नहीं, बल्कि एक पैगाम है अबाबिल फाउंडेशन की जानिब से कि हम आपके साथ हैं, आप तन्हा नहीं, हम आपके साथ कदम मिलाकर चलेंगे। जब जब अबाबिल फाउंडेशन की जरूरत आदमी में महसूस हुई, तब तब अबाबिल फाउंडेशन किसी न किसी एक मुत्तहिद तंजीम होकर आपके खिदमत में पेश हुई। आपके सब खिदमत को अंजाम देने के लिए आपके सामने खिदमत में हाजिर हैं। और हमारी तंजीम सिर्फ आधुनिक तक महदूद नहीं, बल्कि हर उस मोहल्ले में, हर उस इलाके में है जहां मजलूम है। हमारा इरादा है कि जब तक अबाबिल फाउंडेशन आदिनी में है, कोई मजलूम भूखा नहीं सोएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जहां पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पेट पर पत्थर बांधते थे भूख की वजह से, लेकिन हमेशा ये जहन में ख्याल रखते थे कि मेरा साथी भूखा ना सोए। इस्लाम की तालीमात है कि हमारे घर में जो पत्ता वो हम अपने गरीबों को, अपने साथियों के साथ में, मुस्तहिक को साथ में मिलाकर उनके साथ में खाने का नोश फरमाएं। और इसी के साथ साथ हमारी तंजीम सिर्फ आने वाले दिनों में